Good morning, students. Assalamu alaikum. How are you? Hopefully, all of you are fine and doing well. Dear students, today we are going to discuss the very first lecture of economics. We can say that it is somehow the introduction of economics. So basically, we will have a 17 weeks classes, right? So in these 17 weeks we will divide some lecture for our mid exam and some for our final exam, right? So for our mid exam we will talk about talk about first of all the introduction to economics. That is our first lecture. Then in second week we will talk about consumer equilibrium. In third, concept of demand, supply and market equilibrium. In fourth week we will talk about elasticity of demand, supply and demand. In fifth week, theory of cost. And in sixth week, market structure. And seventh week we will talk about perfect competition. And then in week 8 we will talk about introduction to monopoly, comparative analysis of PC and monopoly. PC stand for perfect competition. And in ninth week we will take mid exam. So we will talk about the lecture of final exam in the when we will be done with our mid-term course. So first of all, if we are talking about introduction to microeconomics, in microeconomics we will talk about theory of consumer behavior in our first class. In theory of consumer behavior we will talk about some basic definitions, then utility and its measurement, then concept of demand and supply, elasticity of demand and supply, relationship between elasticity of demand and total revenue. In next class, in next week, we will talk about theory of cost, in which we will be talking about some basic definitions, then types of cost, then application of type of cost in economic decision. In the fourth we will talk about theory of market structure, in which we will talk about types of market structure and their interrelationships. So first of all we are going to discuss some basic things, basic concepts, basic ideas about economics, in which we will start from introduction to macroeconomics, and then national income discrimination, then Keynesian consumption function, saving investment function, the concept of multiplier, inflation and unemployment, demand measurement policies, measurement of inflation with price indices. So in our first lecture, that is our first chapter, we are going to discuss economics, what actually economics is. So first we will be talking about the very basic concept behind the word economics. So the word economics is derived from the Greek word meaning household management. There is a word that is called economics. Like ये वो economics है जो कि आप कहते हैं कि मैं economics पढ़ रहा हूँ. तो ये जो economics word है, इसका मतलब ये है कि ये एक household management के बारे में है और ये एक Greek word से निकला हुआ है. ठीक है. तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. वी हैव अ बंडल ऑफ डिज़ायर्स. मेरी बहुत सी डिज़ायर्स हैं. मैं कहता हूँ मैं यार अभी हवाई जहाज़ में बैठा होता, मैं ये खा रहा होता, मैं मेरा इस तरह का घर होता, वगैरह वगैरह. तो मेरी बहुत सी डिज़ायर्स हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दिस डिज़ायर्स, बट ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स आर स्कैर्स. हमारे पास चीज़ें बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लामहदूद हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है. ये चीज़ें जो चीज़ें हमारे डिज़ायर्स को पूरा करती हैं वो स्कैर्स हैं, जो कि कम हैं तादाद में, ठीक है. टू प्रोड्यूस गुड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नीडेड एंड दीज ऑल आर स्कैर्स. जब भी हम चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, चीज़ें बनाते हैं. सपोज़ मैं इस वक्त बैठा हूँ और कार की फैक्ट्री मेरी, ठीक है. तो कार को बनाने के लिए मुझे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर कुछ भी नहीं बना सकते आप. तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास बंडल ऑफ डिज़ायर्स हैं आपके, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपके वो स्कैर्स हैं, यानी रिसोर्सेज वो जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है. तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं. यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम हमारी जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उनको हम किस तरह से लिमिटेड जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे हम पूरा करें, ठीक है. वाई इकोनॉमिक्स? बिकॉज
इकोनॉमिक्स क्यों इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो कहत में है, कम है, ठीक है। मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक तो चीज़ें कम है, फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज जो कम है उसको किस तरह से हम उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, किस तरह उसको कम यानी कम से कम चीज़ को किस तरह से हम इस्तेमाल करें कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो थर्ड जो हमारे पास है टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट, कि हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो ये है कि वो रिलेटेड है आपकी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ। यानी आपके पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, आप कभी एक काम करना चाहते हो, कभी दूसरा, मतलब अभी टाइम की बात कर लेते हैं ना, अभी ये टाइम है 11:24। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास 12 बजने के लिए मेरे पास 26 मिनट है, तो 26 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसका सबसे सही से सही इस्तेमाल ये है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम में मैं बाहर भी जा सकता था, दोस्तों के साथ घूम फिर भी सकता था, अपनी रिसर्च स्टडी भी कर सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं इस कम से कम टाइम को इस तरह यूटिलाइज़ करूँ कि उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ने मुझे ये सिखाया है कि आप यहाँ पे क्लास ले लें 26 मिनट में, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एक तो आपकी ह्यूमन जो वांट्स हैं, जो ह्यूमन्स की डिज़ायर्स हैं वो बहुत अनलिमिटेड हैं। दूसरा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, यानी रिसोर्सेज जो आपको मुहैया किए गए हैं वो कम से कम है, ठीक है। अब स्कैरसिटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ है। मीन्स दैट सोसाइटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू हैव। स्कैरसिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। और इसी वजह से वो सोसाइटी में जितने लोगों जो जिन चीज़ों की ख्वाहिशें रखते हैं, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम स्कैरसिटी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप जहन में रख लें क्योंकि इनका यूज़ जो है आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में स्कैरसिटी है, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट ह्यूमन वांट्स एक्सीड द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, गुड्स एंड रिसोर्सेज। आपके पास जो ह्यूमन है, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो अवेलेबल टाइम को या गुड्स को या रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास नहीं होता, ठीक है। हमारी जो वांट्स है वो ज़्यादा है और हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है, गुड्स और रिसोर्सेज हैं वो कम है, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन वांट्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं आपकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज से। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि स्कैरसिटी का है, क्योंकि हमारी वांट्स ज़्यादा हैं, ह्यूमन वांट्स ज़्यादा हैं और अवेलेबल टाइम और गुड्स और सर्विसेज रिसोर्सेज जो है हमारे पास कम है। सेकेंड है चॉइस, बिकॉज इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी कैन नेवर हैव एवरीथिंग दे डिज़ायर, दे देयरफॉर आर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। हमारे पास जो ह्यूमंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं या सोसाइटी है वो कभी भी हर वो चीज़ जो ये लोग चाहते हैं वो चीज़ नहीं ले सकते। मतलब मैं कहता हूँ यार अभी ये 25 मिनट मेरे पास है तो 25 मिनट में मैं क्या करूँ, अब मेरे पास टाइम कम है ना, तो मैं इसमें एक चॉइस लूँगा, ठीक है, एक चीज़ चूज़ करूँगा, मैं कहूँगा यार ये वाला ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरी चॉइस है वो ये है कि इस टाइम में मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक बेस्ट चॉइस है, ठीक है। देन हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट आता है। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या किसे कहते हैं? दी सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन फॉर ए चूजन ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी कास्ट इसको कहते हैं कि मैं यहाँ पे अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, 25 मिनट में मैंने कहा कि मैंने ये चूज़ किया है कि मैं क्लास लेता हूँ। अब मैं ये क्लास लेने के लिए किस चीज़ को फॉरगॉन करता हूँ, मैं इस वक्त रेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ समथिंग इज़ दैट व्हेन यू take something, right, like I choose to take the class lecture, so I'm giving up with another option that was to take rest, to play cricket, to hang on with my friends. So मैंने ये सारी चीज़ों को कुर्बान किया है, ठीक है, अपने आपको क्लास लेक्चर के लिए, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ टेकिंग द क्लास इज़ टू नॉट
is to not play cricket, is to not take rest, is to not hang out with माई फ्रेंड्स. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप किस चीज़ को खोते हो. ठीक है, बेस्ट चीज़ क्या है उस चीज़ों में. ठीक है, तो यानी मैं अब ये कहता हूँ ना कि मेरे पास 3 ऑप्शन है. सबसे अच्छा काम ये है कि मैं क्लास ले रहा हूँ. दूसरे नंबर पे ये है कि मैं बस सो जाता, लेट जाता. ठीक है, थर्ड मेरे साथ ये है कि मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लेता. तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो मेरे लिए क्लास लेना है. ठीक है, तो मैंने क्लास ले ली. अब सेकंड नंबर पे मेरे साथ क्या चीज़ बेस्ट थी? मेरे साथ रेस्ट करना, सो जाना ज़्यादा बेस्ट था. तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ टेकिंग द क्लास इज़ टू नॉट टेक रेस्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट है. देन हम आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, वगैरह वगैरह. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार्स रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स हमारे पास एक स्टडी है जो कि हमें बताता है कि सोसाइटी किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करता है. ठीक है, और हम कह सकते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स स्कार्स रिसोर्सेज. हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस चीज़ की स्टडी है कि सोसाइटी किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है अपने साथ गिवन जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं. इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे पास जो फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, द फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन फेसिंग एनी इकोनॉमी आर व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस गुड्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो बेसिक आपसे अगर कोई पूछता है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर दे 3 क्वेश्चन उसको कहने कि ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स है. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. हम क्या चीज़ जो है अपने पास जो गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो हम उससे क्या चीज़ बनाएं. ठीक है, दूसरा हाउ, किस तरह से उसकी, यानी कितने लेबर्स लें, कितने हमारे पास मशीनरी लें. ठीक है, तो उस हाउ यानी हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो फिर हम ये कहते हैं कि हम सोसाइटी में किस बंदे को, किस डिवीज़न को जो है जो टारगेट करें, किसके लिए ये चीज़ बनाएं. ठीक है, द व्हाट क्वेश्चन आस्क एग्जैक्टली विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कहते हैं कि ये हमें इस चीज़ का एग्जैक्ट आंसर देता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है कि हम कौन सी गुड यानी क्या चीज़ बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं, कितनी यूनिट्स बनाएं. सपोज़ मैं हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे क्या चीज़ बनाऊँ. सबसे पहला मेरा मकसद ये है, तो मैं कहता हूँ यार मेरे ख्याल में मुझे बर्फ़ी बना लेनी चाहिए. अब बर्फ़ी मैं कितने केजी बनाऊँ. ठीक है, और बर्फ़ी बनाऊँ या गुलाब जामुन बनाऊँ, क्या चीज़ बनाऊँ. ठीक है, तो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स में आता है वो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. द सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस. द हाउ क्वेश्चन रिक्वायर्स सोसाइटी टू डिसाइड द रिसोर्सेज मिक्स्ड यूज टू प्रोड्यूस गुड्स. जो सेकंड क्वेश्चन है कि हम ये कहते हैं कि हम किस तरह से एक चीज़ को बनाएं. सपोज़ मैं बर्फ़ी बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कितने लेबर्स मैं इसके लिए लगाऊँ, कितनी मशीनरी मैं इसके लिए लगाऊँ, कितनी ज़मीन इसके लिए मैं लूँ, वगैरह वगैरह. यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँ. ठीक है, थर्ड हमारे पास ये है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस. उसमें ये आता है कि आपके पास जो सिटीज़न है, ठीक है, हम कौन से सिटीज़न को टारगेट करें. फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम कंसर्न द डिवीजन ऑफ आउटपुट एमंग सोसाइटी सिटीजन्स. कि हम जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम सोसाइटी की सिटीजन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें. ठीक है, किन लोगों को हम टारगेट करें. ठीक है, फिर हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ. डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 बेसिक जो डिफिनीशंस गिवन है वो सबसे पहले एडम स्मिथ है, दूसरे नंबर पे हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल है, थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रोफेसर रॉबिन्सन है. ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास जनरल डिफिनीशंस है वो हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट नॉलेज विच गाइड द इंडिविजुअल्स टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है. ठीक है, किस चीज़ की स्टडी है? उस नॉलेज की स्टडी है जो कि हमें गाइड करता है, जो कि इंडिविजुअल्स को गाइड करता है कि वो किस तरह से उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करें, और किस चीज़ को देखकर, किस चीज़ की मौजूदगी में, स्कैर्स रिसोर्सेज की मौजूदगी में. यानी मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने क्या करना है कि मेरे पास बाइक है. ठीक है, उस बाइक को मैं किस तरह से अच्छा हम 4 भाई हैं और हमारे पास एक बाइक है. इकोनॉमिक्स मुझे ये बताता है कि हम किस तरह से बाइक को यूज़ करें कि हम सब की नीड्स जो है मैक्सिमम हद तक पूरी हों. ठीक है,
तो मैक्सिमम हद तक कैसे पूरी हो? सपोज़ मैं एक टीचर हूँ, मेरा दूसरा भाई है वो डॉक्टर है, मेरा तीसरा भाई है वो लेक्चरर है, मेरा चौथा जो भाई है वो मज़दूर है, ठीक है? तो अब ये है कि हम एक बाइक को किस तरह से यूज़ करें, ये अभी हमें इकोनॉमिक्स बताता है। अब इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि आप ऐसा करें कि जो मज़दूर भाई है आपका, उसको आपका अगर वो लेट चला भी जाता है तो इतना इशू नहीं होता, ठीक है? अब उसको चाहिए कि वो बाइक पे एक-एक बंदे को अपनी-अपनी जगह पे पहुँचा दे, ठीक है? और बाइक फिर अपने साथ खड़ी करके वापसी में भी ऐसे ही कर ले, ठीक है? यानी सबको पिक एंड ड्रॉप करे, ठीक है? तो ये एक तरह से बेस्ट यूज़ है आपकी जो बाइक है आपके पास एक तो। इकोनॉमिक्स एक्चुअली हमें उसी नॉलेज को स्टडी करने इसी नॉलेज की स्टडी है जो कि हमें बताता है कि किस तरह से आपने स्कैर्स रिसोर्सेज की मौजूदगी में अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अच्छे से मीट करना है, ठीक है? आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ हम यहाँ पे हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं कि इज़ द स्टडी ऑफ दैट नॉलेज व्हिच गाइड द इंडिविजुअल टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। सेकंड नंबर पे हमारे पास एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने हमारे पास जो डिफिनीशन की है वो क्या की है? इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स जो है ये वेल्थ की साइंस की स्टडी है, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ, कि हमारे पास वेल्थ की जो साइंस है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अब इस डिफिनीशन के 4 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले ये है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स जो है ये यानी साइंस ऑफ वेल्थ को हम ये इस तरह से कहते हैं कि यानी आपसे अगर आप कहते हो कि एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ, तो अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आपके साथ वेल्थ की प्रोडक्शन कैसे होगी, वेल्थ की कंजम्पशन कैसी होगी, वेल्थ की को एक्सचेंज कैसे करेंगे, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है? वेल्थ दौलत को कहते हैं, वेल्थ को हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम किसी चीज़ को खाने को कहते हैं। यानी जो बंदा, यानी हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक कस्टमर, दूसरा कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है जो कि चीज़ ख़रीदता है, ठीक है? जो उसका ये काम नहीं होता कि वो ज़रूरी नहीं है कि एक कस्टमर कंज्यूमर हो। कंज्यूमर वो बंदा होता है कि जो चीज़ एक्चुअली यूज़ करता है, ठीक है? आपने एक फ़ैन ख़रीदा है, ठीक है? अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है? आपकी सिस्टर उस फ़ैन के नीचे बैठी होती है और उससे उसको गर्मी महसूस नहीं होती, ठीक है? अब आप कस्टमर हो गए हैं और आपकी सिस्टर जो है ना वो कंज्यूमर हो गई है। आप बाज़ार में हैं, आपने एप्पल ली है, ठीक है? आपने एप्पल ली है तो आप एप्पल जो है अपने घर ले जाते हो, आपकी अम्मी वो खा लेती है। तो आप एक्चुअली कस्टमर है और आपकी अम्मी जो है वो कंज्यूमर है, ठीक है? तो फिर हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, वेल्थ को किस तरह से एक्सचेंज किया जाए। और 4th नंबर पे हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, के वेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेकेंड नंबर पे हमारे पास डिफिनीशन आती है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, ए वेल नोन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज बिहेवियरल साइंस। जो हमारे पास न्यू क्लासिकल ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कि न्यू क्लासिकल क्या है, क्लासिकल क्या है, किनीजन क्या है, ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे पास एक वेल नोन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम अल्फ्रेड मार्शल है। उसने कहा इकोनॉमिक्स जो है ये एक बिहेवियरल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो वो कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक मैनकाइंड की स्टडी है जो कि ज़िंदगी के कुछ ख़ास शोबों में वो किस तरह से डिसीजंस लेता है उसके बारे में, यानी मैनकाइंड की स्टडी है, ठीक है? अल्फ्रेड मार्शल हैज़ एक्सप्लेन द इंडिविजुअल बिहेवियर, कि इंडिविजुअल के बिहेवियर कैसा है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेट ऑफ वेल बीइंग्स, कि किस तरह से उसके पास जो चीज़ें गिवन है उसको वो किस तरह से यूटिलाइज़ करता है, उसकी इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह से है। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उसका इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है। तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली इस मैनकाइंड की ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में उसका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने का नाम है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्सन, हम ये कहते हैं रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंड्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज विच हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस। हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है? कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से एक तरह मल्टीपल इंड्स, यानी आपके पास हम कहते हैं कि हमारे पास हमारी ख्वाहिशात बहुत हैं, ठीक है? मेरी एक ख्वाहिश, दूसरी ख्वाहिश, तीसरी ख्वाहिश,
मेरी पहली नीड्स, दूसरी नीड्स, तीसरी नीड्स, ये सारी मेरे पास मल्टीपल एंड्स, ये एंड्स का मतलब है, इसका मतलब मल्टीपल एंड्स है। और स्कैर्स रिसोर्सेज मेरे पास ये है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास लेबर कम है, मेरे पास कैपिटल कम है, ये जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास कम है। तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है जो कि हमें ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप मल्टीपल एंड्स और स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में के दरमियान बताता है, और वो स्कैर्स रिसोर्सेज जिनका अल्टरनेटिव यूज़ होके उस रिसोर्सेज को हम किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि हम जो है इकोनॉमिक्स की बेसिक जो हम अंडरस्टैंडिंग है वो उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। एक डिफिनीशन हो गई कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है जो कि हमें डिसीजंस बनाने के लिए, डिसीजंस कैसे बनाया जाए प्रेजेंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी की मौजूदगी में किस तरह से डिसीजंस बनाए जाएं, इसकी साइंस को इकोनॉमिक्स कहते हैं। रिसोर्सेज आर सिंपली एनीथिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस ए गुड और सर्विस आर मोर जनरली टू अचीव ए गोल। रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो कि आपको किसी चीज़ की प्रोडक्शन में मदद देते हैं, ठीक है, किसी गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन में मदद देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके मकसद को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज स्कैर्सिटी इम्प्लाइज दैट बाय मेकिंग वन चॉइस यू गिव अप अनदर। डिसीजंस आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ जो है उसके डिसीजन लेते हैं तो आप उस चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं, उसको गिव अप कर देते हो। तो डिसीजंस जो है इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दी मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ। हमारे पास दो तरह की इकोनॉमिक्स है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, दूसरी हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर विदाउट मेकिंग जजमेंट्स, इट डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट एंड हाउ इट वर्क्स। सिंपल है, हम बैठे हुए हैं ठीक है क्लास में, हम कहते हैं यार ये लाइट जो है ना, इसको अगर हम ये लाइट जो है ना ये जल रही है, तो जलने से यानी लाइट ऑन है, ठीक है, तो इससे हमें रोशनी मिल रही है, ठीक है, रोशनी से हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर लाइट को हम बंद कर दें तो इससे ये होगा, लाइट को हमने जला दिया है तो इससे ये होगा, मतलब एक तरह से इसमें आप जजमेंट्स बनाते हो, ठीक है। एक होता है मैं सिंपल कहता हूँ बस सही है, हमजुल्ला जो है वो इस तरह से है, इट्स फाइन। अब मैं कहूँगा हमजुल्ला इस तरह से होता ना तो इस तरह हो जाता, तो ये अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप सिंपल ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो, आप सिंपल कहते हो कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है और क्या कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है, सिंपल जो चीज़ है बस उसको कहते हो कि बस इट्स लाइक दैट। सेकेंड नंबर पे आपके पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जिसको हम पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि एनालाइजेस आउटकम ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इवेलुएट्स देम एज गुड और बैड और मे प्रिस्क्राइब कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप एक पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी कहते हो, और इसमें हम इकोनॉमिक बिहेवियर के आउटकम को एनालाइज करते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, और फिर हम उसके लिए एक और सोल्यूशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो हम जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिंपल चीज़ें जिस तरह से हैं उसको वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को जज करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को एवेलुएट करते हैं, हम कहते हैं क्या चीज़ बुरी है क्या ठीक है। अगर मैं अब बैठा हूँ, मैं कहूँ कि जीडीपी जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो -1 पॉइंट में है, ठीक है, मैंने सिंपल बात की। अब मैं ये कहूँ कि ये मेरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब मैं कहूँ कि यार अगर इमरान खान ने ऐसे किया होता ना तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 5 पे पहुंच जाती बजाय माइनस के। तो अब यहाँ पे मैंने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जिक्र किया है कि चीज़ों को इस तरह से हो जाती तो इस तरह से हो जाता। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इट ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज़, ठीक है, कि चीज़ जो चीज़ है जैसी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। पॉजिटिव साइंस डजंट इंडिकेट व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड टू द सोसाइटी। हम ये नहीं कहते कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, हम सिंपल कहते हैं ये चीज़ है बस, फाइन। इट विल सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम। ये हमें सिंपल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट आप देते हो वो फैक्ट्स बेस्ड होती है, यानी आप जो चीज़ नज़र आ रही होती है, ऐसे नहीं कि ऐसे, यानी जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड और बैड। हम कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, यानी गुड्स और बैड में डिस्टिंक्शन के लिए हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। इट प्रिस्क्राइब व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। हम ये कहते हैं कि क्या करना चाहिए था ताकि ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन को फ़ायदा ज़्यादा पहुँच जाता। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एथिकल वैल्यूज़। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में हम एथिकल वैल्यूज़ को जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और पॉलिसी मेकिंग में भी हम नॉर्मेटिव साइंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है उसको दो ग्रुप्स, ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इन द ग्रीक टर्मिनोलॉजी माइक्रो मीन्स स्मॉल। हम जब माइक्रो का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब है छोटा, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक पर्टिकुलर, एक ख़ास फर्म, यानी एक जिस चीज़ को आप टारगेट आपने किया होता है ना, एक चीज़ के बारे में बात होती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स फर्म के बारे में बात होती है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल प्राइस की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल वेज की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात हो रही है और पर्टिकुलर या इंडिविजुअल कमोडिटी की बात हो रही है। ठीक है, कि हम कहते हैं कि शैम्पू की कीमत कम हो गई, ज़्यादा हो गई, इस तरह से हम कहते हैं कि जो टोयोटा है उस एक वो एक फर्म है, टोयोटा की एक फर्म है ना, हम उसमें सिर्फ टोयोटा की बात कर रहे हैं, हम उसमें किसी और कंपनी का नाम नहीं ले रहे। सपोज हम होंडा बाइक की बात करते हैं, सिर्फ होंडा बाइक जो फर्म है उसके बारे में बात करते हैं, होंडा बाइक की कीमतों के बारे में बात करती हैं, एज ए होल बाइक इंडस्ट्री की बात नहीं करते। जब एज ए होल इंडस्ट्री की बात करोगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन इश्यूज हैं वो ये हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर थ्योरी ऑफ मार्केट्स है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, फिक्स्ड प्राइसिंग है, फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स पाए जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले कंज्यूमर है। कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, कि यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। अब यूटिलिटी क्या चीज़ है? यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को कहते हैं, कि एक कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको किस तरह से मैक्सिमाइज़ किया जाए। सेकंड नंबर पे एक प्रोड्यूसर है, यानी हमारे पास 3 इकोनॉमिक एजेंट होते हैं एक इकोनॉमी में। ठीक है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म ओनर। ठीक है, अब नहीं, एक फर्म ओनर नहीं होता, एक गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे चीज़ दूसरी डिफरेंट है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, आई एम सॉरी। हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, प्रोड्यूसर का मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन है, और फर्म ओनर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक कंज्यूमर चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक फर्म जो होता है वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कोर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है। तो हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल फॉर्म, इन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालिसिस करते हैं स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द ग्रीक टर्मिनोलॉजी मैक्रो मीन्स लार्ज। हम कहते हैं एक माइक्रो था, माइक्रो का मतलब स्मॉल था, और मैक्रो का मतलब लार्ज है। अब जाहिर सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने छोटी छोटी चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों की स्टडी की। मैक्रो लेवल, जो कि मैक्रो का मतलब ही आपके पास बड़ा है, लार्ज है, तो हम कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना सिर्फ इंडिविजुअल क्वांटिटी सच एज, जो कि हमारे पास पहली थी, ना सिर्फ उनकी डीलिंग करता है, बट विद एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़, और इसके साथ साथ एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज़ के बारे में बात करता है। जैसे कि नॉट विद इंडिविजुअल इनकम्स बट विद द नेशनल इनकम। हम ना सिर्फ इसमें एक आपकी इनकम, आपकी अबू की इनकम के बारे में जिक्र करते हैं, बल्कि हम ओवरऑल इकानमी की इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइसेस, हम सिर्फ टमाटर की कीमत के बारे में बात नहीं करते, बट विद जनरल प्राइस लेवल, हम सारी चीज़ों की प्राइस लेवल के बारे में बात करते हैं। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि टोयोटा ने इतनी कारें प्रोड्यूस की, बल्कि हम नेशनल आउटपुट की बात करते हैं कि इकोनॉमी में टोटल कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई। सपोज़ कितनी जर्सियाँ, कितनी कारें, कितनी कितने जहाज़, कितना आर्मी, मतलब कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई एक्चुअली। तो हम इस चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो डील करेंगे वो, उसमें हमारे पास नेशनल इनकम होगा, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस होगा, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, द जनरल प्राइस लेवल की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की बात भी होगी उसमें। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी। इट आल्सो गिव्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस फैक्टर्स लाइक बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट लाइक दूस रिलेटिंग टू टैक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड लेबर रिलेशंस। ये चीज़ें जो हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है लेक्चर था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग जो है क्लास के जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल क्लासरूम में, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कौन सी चीज़ों की समझ नहीं आई। आपने क्वेश्चन भी करना है, आपका कोई इशू होता है तो आपने एक शॉर्ट ऑडियो क्लिप बना के
ग्रुप में जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे अपलोड कर लेनी है। आप लोगों को मैं जो है प्रेजेंटेशन दूंगा, आप लोगों ने वीडियो बना के मुझे जो है ना प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। आप लोगों की क्लास में लड़कियां नहीं हैं तो आप लोगों ने खुद, यानी लड़के हैं तो आप लोगों को मसला नहीं होगा, तो आप लोगों ने वीडियो बना के मुझे प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है। और ग्रुप में अपलोड करनी होगी, मुझे व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करनी होगी। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी इशू होता है आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे सामने डिस्कस करना है। गूगल क्लासरूम में भी आप मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो है जूम पे लेंगे, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जो जो इशू आप लोगों के होते हैं तो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। बाकी मैं इस ये जो स्लाइड्स हैं इसको भी मैं जो है गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच डियर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।